آئیں عزیزو ہم اپنے سر کو جھکائیں اور اپنی عبادت کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تمام سر یسوع کے نام سے جھک جائیں اور خداوند کا شکر بجا لائیں کہ خداوند نے سارا دن حفاظت اور نگہبانی کی اور آج کی شام ہماری زندگیوں کے اندر بخش دی تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دینے کا باعث بن سکیں۔ خداوند سے کہیں خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے زندوں کی زمین پر رکھا اور ہم خداوند تیرے شکر گزار ہیں آج کی ساری اس میل ملاپ اور رفاقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں کے اندر خداوند آج عنایت کی ہے کہ ہم تیری شکر گزاری کر سکے، کیونکہ خداوند تو ہی شکر گزاری کے لائق ہے، تو ہی تمجید کے لائق ہے، تو ہی الفا ہے، تو ہی امیگا ہے، تو ہی ابتدا ہے، تو ہی انتہا ہے۔ خداوند تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اب خداوند جتنے لوگ تیری حضوری کے اندر آ چکے ہیں اور جتنے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سب کو لے کے آ تاکہ تیرا گھر بھر جائے اور خداوند تیرے نام کی ستائش کرے، تجھے جھک کر سجدہ کرے، تجھے خداوند تیری ستائش کرے، تیری پرستش کر سکے تاکہ تیرا نام عزت و جلال پائے۔ اور خداوند جتنی جانے اس وقت تیرے آگے سال لوگوں کے سب کے دل کے ارادوں خیالات کو جانتا ہے کہ وہ کن کن چیزوں کے محتاج ہے۔ خداوند وہی آسمان اور زمین کے دریچوں کو کھول کر برکت دے اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو بڑی کثرت سے استعمال کر۔ اور خداوند آج جو بھی ہم کام کریں تیری مرضی کے مطابق ہو۔ خداوند تیرے پاک روح کا مسا یہاں پہ چاہتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک تیرا پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرے تاکہ ہم جب پرستش کریں تو تیرے نام کو جلال ملے، جب ہم کلام سنیں تو خداوند کلام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا بن سکے۔ ایک بار پھر تمام خداوند فاضل کلونی کے لوگوں کے لیے، شاہجہاں لوگوں کے لیے، تمام خادم دین کے لیے، ملک پاکستان کے لیے ہم دعا گو ہیں خداوند یسوع مسیح ہمیں بحالی عطا فرما تاکہ تیرا جلال جائے۔ خداوند ایک بار پھر سارے پروگرام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، ہماری مدد اور رہنمائی کر یسوع کے نام سے۔ مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام میں میں تمام کلیسیا کو، تمام ناظرین کو خدا یسوع کے نام میں ان کی سلامتی چاہتا ہوں اور دعا دوں کہ خدا یسوع مسیح اسی طرح ہمیں برکت دیتا رہے اور ہم اسی طرح خدا کے حضوری کے اندر جھکتے رہیں اور خدا کے نام کو جلا رہے۔ آئیے ہم خدا کی پرستش کریں۔ پرستش خدا کو پسند ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ اس کی پرستش کر سکیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں، اپنے ہونٹوں کا استعمال کریں، کس کے لیے؟ یسوع کے لیے جو برکت دیتا ہے۔ تو آئیے خدا ان کی پرستش میں زبور 122 میں خوش ہویا جدو منو آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ خداوند جب مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب تیرے گھر کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے۔ تو آئیے خداوند کے لیے گائیں، خداوند کے لیے بجائیں تاکہ خدا کا نام عزت اور جلال پائے۔ آئیے خدا کے لیے گائیں۔ میں خوش ہویا جدو
आखिर लगे कि आओ ये हवा दे घर चलिए। खुदावन जब तेरे घर के लिए मुझे बुलाया जाता है तो मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। आइए खुदावन के नाम को और ज़्यादा जलाल दे, खुदावन के और ज़्यादा मसा को मांगे। ज़बूर 118 सदा जिक्र है रहमत साडे, खुदा की बरकत, खुदा का रहमत बलहार उन्हीं लोगों पर हमेशा कायम रहता है जो उसके हुक्म पर चलते हैं, जो उसके नाम को जलाल बख्शते हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, जो खुदा के पाक रूह को जो अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं कि खुदा उनका पाक रूह हमारे साथ है, इसलिए हम जो है खुदा के नाम को जलाल देंगे। तो खुदा उनकी प्रस्तुति में गीत गाएंगे, सदा जिक्र है रहमत साडे राबी। सबको आता है, ताली भी बजाएंगे, अपने होठों को भी खोलेंगे ताकि खुदा का नाम इस तौर चलाओ। सदा से कलाम मांगे तो खुदावन आज का कलाम मेरे लिए हो, ताकि खुदावन हम तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बन सके। मैं अपनी बुजुर्ग माँ आपदा बीबी से कहूँगा कि वो खड़े हों और खुदावन से कलाम मांगे, इन जानों के लिए खुदावन से बरकत मांगे, ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। और खुदावन यीशु नासरी जो है आज इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और हम इस कलाम के जरिए से बरकत हासिल करें, ताकि खुदावन का नाम इस तौर जलाल पाए। दुआ करनी शुरू करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रोल खुदा, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं बीते लम्हों के लिए और सुबह से लेकर अब तक बाप आपने हमारी फाज निगहबानी की जिंदा रखा। हम तेरे कदमों में आकर खुदावन तेरा शुक्र खुदावन यीशु नासरी तुझे सजदों के लायक है। हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र। तो खुदावन साज़ो वाज़ों पर तेरा मसा और तेरी आवाज तेरा शुक्र खुदावन यीशु और आज का कलाम तेरा जलाल तेरा कलाम खुदावन तेरा शुक्र दुनिया के कोने कोने में पहुंचे तारीफ हो और आपका आना जल्द हो। तेरा शुक्र खुदावन ये कोरोना जैसी बीमारी जो मेरी वजह से आई है खुदावन तू मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाह बख्श दे। हम तेरे गुनाहगार बेकार लाचार बंदे हैं, तुझसे मिन्नत करते हैं तू हमारे गुनाहों की सजा तेरा शुक्र तेरा खुदावन अपने बेटे के नाम के खातिर
हम पर रहम करम। आज का कलाम जो भी तेरा खादम बोले वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100। हालेलुया हालेलुया। और खुदावन आसमान ऊपर से जमीन के सोते खुल जाए और इतनी बरकत देना कि इनके पास रखने के लिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये जमात को तेरे हैंड ओवर करते हूँ, तेरा शुरू से आखिर तक तू हमारी मदद कर रहनुमाई कर, तेरा शुक्र और पल पल हम तुझे याद कर। हालेलुया हालेलुया। तो हमारी सांसों के करीब है। हालेलुया। हमारा झुकना और बैठना आपकी हजूरी में कबूल हो। ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ अपने खुदावंद के सदाती के नाम से, आमीन। आमीन। आइए अपने हाथ फैलाएं और हम अपने अक़द का इजहार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा उनका मुतलिक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, तू उसकी हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आज मेरवान में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों की इदाद करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, आखिरी कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। खुदा ये सुनाती मैं तो मिट्टी का टूटा फटा बर्तन हूँ, मुझे अपने मुँह का बर्तन बना के इस्तेमाल कर। आज का कलाम जो खुदा ये सुनाती तेरे वसीला से है, खुदा मैं तो खुदावन इन जानों के लिए वसीला बन सकूँ। आज का तेरा कलाम खुदावन हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदावन गहरा असर छोड़े, क्योंकि तेरा कलाम कभी भी बेहतर रूप में नहीं लौटता। आज जो भी जान इस कलाम को सुने, मैं इसको सुनने वाली ना बने बल्कि इस पर अमल करने वाली बने। हमारी मदद और रहनुमाई कर यीशु के नाम से। मसीह यीशु के अजीम और कादिर नाम में मैं एक बार फिर अपने बेटे बेटियों की और तमाम नाज़रीन की सलामती चाहता हूँ। और मैं तमाम आज नहायत ही शुक्रगुजार हूँ खुदावन का कि खुदावन यीशु नासरी आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। खुदावन यीशु जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अजायब काम करता है। जब तक हम खुदावन के पाक रूह के साथ रहते हैं, हम महफूज रहते हैं, हमारी ज़िंदगियों के अंदर परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, मुश्किलें ख़त्म होती हैं और हम नडाल नहीं होते, परेशान नहीं होते। तो मेरे अजीज़ों, आज का मेरा जो कलाम का टॉपिक है वो आज ये है कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा मत करो। खुदा के पाक रूह से हम लैदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर है, हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। जब तक खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर है, हम गुनाह नहीं करेंगे। और जब तक खुदा का पाक रूह है, हमें कोई बीमारी जो है, कोई परेशानी, कोई बुरी वबा जो है वो छू नहीं पाती। क्यों? जब खुदा का पाक रूह हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कमी ना होगी। वो हमें हर एक बला से बचाने की कुदरत रखता है। और पाक रूह कौन है? हमारा खुदा। जब खुदा हमारे साथ है तो हमें किस चीज की हैबत, हमें किस चीज का डर, हमें किस चीज की फिक्र। तो याद रखें कि हमने खुदा के पाक रूह को रंजीदा नहीं करना। और आज का टॉपिक यही है, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना। मैंने आपने कोशिश यही रखनी है कि खुदा का पाक रूह हमसे ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि कलाम कहता है कि तुम मुझसे दूर रह के कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा के पाक रूह से लैदा होकर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। अगर बरकत है हमारे घर के अंदर, हमारे किचन के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, तो खुदा का पाक रूह हमारे साथ है, तो ये सारी उसकी बदौलत है। जब खुदा हमारे साथ है तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। आइए खुदा के पाक कलाम की तरफ हम देखें। आज का खुदा का जिंदगी बच कलाम हमें क्या बयान करता है। मेरे साथ जरा निकालिए जिन्होंने बाइबल मुकद्दस
अपने हाथों में ली हुई है, वो खुदा के कलाम में से निकालिएगा। इफिसियों 4 बाब, इफिसियों का खत उसका 4 बाब उसकी 30 आयत। और ये तलावत जो है पढ़ने के अंदर मिसिस रहीला सरफराज जो है वो करेगी। तो मैं उनसे कहूँगा कि इस कलाम मुक़द्दस की इफिसियों 4 बाब उसकी 30 आयत की तलावत करें। इफिसियों के नाम उसका 4 बाब 30 आयत में यूं मज़मून है, और खुदा के पापों को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हो। आमीन। खुदा उनकी जिंदगी को इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। अब बात होती है कि क्यों रंजीदा ना करें। खुदा के कलाम का तरीका है खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। ये ऐसा लफ्ज है जिन्हें खुदा के हर एक फरजान के दिल पर परगंदा होना चाहिए। हर एक खुदा की बेटी, खुदा का बेटा, खुदा के मानने वाले लोगों के दिलों के अंदर ये बात होनी चाहिए कि मैंने खुदा के पाक रूह को रंजीदा नहीं करना। ये ऐसा लफ्ज है जिन्हें हमारे कानों में दिन और रात गूंजते रहना चाहिए। ये ऐसा लफ्ज है कि हम खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करें। ये लफ्ज को हमारे कानों के अंदर दिन और रात गूंजना चाहिए। हमें ख्याल होना चाहिए तमाम आजमाइशों के अंदर, चाहे हमारी जिंदगी के अंदर जितनी मर्जी आजमाइशें आ जाए, जैसे कि आजकल हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि तमाम दुनिया के अंदर इस आजमाइश ने घेर रखा है। कोरोना जैसी वबा ने, हम आजमाइशों के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, चर्च बंद हैं और हम अपने कारोबार पर नहीं जा सकते, काल है, मुश्किलें हैं। ये आजमाइशें हमारे ऊपर है, लेकिन हमें तमाम आजमाइशों के अंदर भी खुदा के पाक रूह को रंजीदा नहीं करना। इन्हें तमाम नापाक बातों के अंदर, बुरी बुरी बातें से हमने खुदा के पाक रूह को रंजीदा नहीं करना। हमारे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे खुदा का पाक रूह हमसे रंजीदा हो, नाराज हो, खफा हो जाए। तो बुरी बातें नहीं करनी, बुरा मुंह से कुछ कहना नहीं। जैसे कि मैं कल के मैसेज में आपको बता रहा था कि गाली नहीं बनती, गाली के बदले गाली नहीं देनी, बदी के बदले बदी नहीं करनी। तो अपनी बातों से, आपके बोलने से, आपकी सोचों से, आपके ख्यालात से खुदा के बेटे और बेटी की झलक नजर आनी चाहिए। खुदा के बेटे और बेटी अगर आप बनना चाहते हैं तो खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करें, उसको नाराज मत करें। और फिर अपनी शख्सी जिंदगी में, अपनी घरेलू जिंदगी में, आपकी जिंदगी से, आपके घराने के उठने बैठने के वसीला से, आपके बच्चों के जरिए से, आपकी बीवी के जरिए से, आपके बेटों के जरिए से, आपकी बेटियों के जरिए से, आपके खामन के जरिए से ये जाहिर होना चाहिए कि हम खुदा के पाक रूह के साथ हैं। खुदा का पाक रूह हमारे साथ है, खुदा का पाक रूह हमारे अंदर है। लिखा है जब हम खुदा के पाक रूह को कबूल करते हैं तो लिखा है कि सारा घराना निजात हासिल कर जाता है। और खुदा का पाक रूह जब हमारे साथ है, मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई नहीं होगी, बच्चे हमारे फरमाबरदार होंगे, नाफरमान नहीं होंगे, बच्चे हमारे गाली गलौज करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है सादकों की औलाद भी सादक होती है, सच्चाई पर चलने वाली, उसके बेटे बेटियां भी वैसे ही होते हैं। और कलाम कहता है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर हम खुदा के पाक रूह के वसीला से खुदा के बेटे बेटियां ठहरे हैं तो हमें भी खुदा के साथ जैसा मिजाज हमारे खुदा में यीशु मसीह का था वैसा ही मिजाज हमने भी अपनाना होगा, हमारे बच्चों को भी अपनाना होगा, हमारे घराने के अंदर भी खुदा के पाक रूह
बल्कि उसके हुक्मों को मानने लगे। जब खुदा के हकाम को मानते हैं, जब खुदा के मुंह की बातों को मानते हैं, तो मेरे अजीजों कभी भी आप शर्मिंदा नहीं होते। और खुदा के हकाम क्या है हमारे लिए? लासा काम खुदा ने हमारी ज़िंदगी के अंदर रखे कि हमने, अगर आप खुदा के पाकों को रजीदा करेंगे, रजीदा कैसे होता है? जब हम हसद करते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर तफरीके, जुदाइयाँ, झगड़े, गुस्सा और तमाम जादूगरी, तमाम बुतपरस्ती आ जाती है, शराबनोशी आ जाती है, नाचरान आ जाता है, तो खुदा का पाक रूह हमसे लैदा हो जाता है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है खुदा पाक है और वो चाहता है कि तुम भी पाक बनो। और पाक रूह हमेशा साफ सुथरी जगह पे आता है, जहाँ पे बुराई नहीं होती, जहाँ पे गाली गलौज नहीं होता, जहाँ पे गुस्सा नहीं होता, जहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होती, जहाँ पे फिरकेबाजी, जादूगरी नहीं होती और बुतपरस्ती नहीं होती, वहाँ पे खुदा का पाक रूह आता है। और जहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, मियाँ बीवी के दरमियान बेतफाकी होगी, बच्चे गाली गलौज करने वाले होंगे, सारा घराना खुदा की हजूरी की बजाय किसी और चीज़ पर तवक्कुल करता होगा, किसी और पर भरोसा रखता होगा, वो खुदा के पाक कलाम के ऊपर कभी अमल नहीं करने वाले बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर बरकत आए, अगर आप चाहते हैं खुदावंद का फजल वाला हाथ आपके ऊपर रहे, अगर आप चाहते हैं आपके किचन के अंदर बरकत आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाइयों के अंदर बरकत आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सादत हों, आपके बच्चे जो हैं सादत बने, आप सादत बने, तो मेरे अज़ीज़ों खुदा के पाक रूह को रजीदा ना करें, खुदा के पाक रूह को अपनी हुजूरी के अंदर लेके आए, खुदा के पाक रूह की हुजूरी के अंदर आ जाए, खुदा के फजल वाले हाथ के नीचे आ जाए। तभी खुदा का पाक रूह जब हमारे साथ होगा तो हम गाली नहीं देंगे, हम बदगोई नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम झगड़े नहीं करेंगे, हम गाली गलौज नहीं करेंगे, हम बुतपरस्ती नहीं करेंगे, हम जादूगरी नहीं करेंगे, हम नाच रंग नहीं प्रबलिम नहीं करेंगे, बल्कि खुदा के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। खुदा का पाक रूह हमारा अच्छा उस्ताद है, वो हमें बताता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। और मेरे अज़ीज़ों, माशरती और कलीसियाई ज़िंदगी में इन अल्फाज पर गौर करना और अमल करने से हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। जब हम खुदा के पाक रूह के मुताबिक चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किल से मुश्किल काम भी हो जाते हैं, हमारे बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। जब हम पाक रूह की हदायत के मुताबिक चलते हैं, जब हम खुदा के पाक रूह को रजीदा नहीं करते, जब उसको नाराज़ नहीं करते, तो हमारे बड़े से बड़े काम भी हो जाते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात हमसे ये सवाल किया जाता है कि मुझे काम करना चाहिए, या इस आयत की रोशनी में क्या हम ऐसे मामला को समझ सकते हैं कि हम अपने आप से ये सवाल करें, क्या इस काम के करने से खुदा का पाक रूह रजीदा होगा या कि नहीं। हमसे सवाल किए जाए, हम अपने आप से सवाल करें, अगर हम चोरी करने लगे तो खुदा का पाक रूह हमें गाइडलाइन करता है कि अगर तुम ये चोरी करोगे तो खुदा का पाक रूह हमसे नाराज हो जाए। बुरे काम करने से, ऐसे काम जो खुदा को पसंद नहीं, जो नापाकी की तरफ लेके जाते हैं, जो हमें नापाक करते हैं, उसकी वजह से हम जो है खुदा के पाक रूह को रजीदा कर देते हैं। अब बात है कि खुदा के पाक रूह को रजीदा ना करें, क्यों? बात है कि क्यों ना करें खुदा के पाक रूह को रजीदा ना करें। सवाल है अब मेरे से और आपसे, ये सवाल है अब की है। सबसे पहले तो हमें रूह कुदरत को इसलिए रजीदा नहीं करना चाहिए क्योंकि माँ की निस्बत इसके हकूक और इख्तियारात ज़्यादा है। खुदा के पाक रूह को हमें रजीदा क्यों नहीं करना? क्योंकि माँ, जिस तरह हम अपने माँ बाप की ताबेदारी करते हैं, अपनी माँ को, उसकी मोहब्बत को फ़र्ज समझते हैं कि उसकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज है, और ये कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमें माँ की निस्बत इसके हकूक़ ज़्यादा हैं, इख्तियारात ज़्यादा हैं। माँ की निस्बत पाक रूह का ज़्यादा लिहाज रखना चाहिए। माँ की निस्बत खुदा के पाक रूह का ज़्यादा हमें लिहाज करना चाहिए।
ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੇ पढ़ाई जाने कि इंज क्यों गया, मेरी माँ ने क्यों इंज किया, इंज क्यों गया। लेकिन यहाँ पे कि माँ के हकूक से ज़्यादा आपने खुदा के पाक का लिहाज रखना है। और लिखा है हमारा फ़र्ज है, इसलिए नहीं कि उसकी मोहब्बत लसानी है। रूह कुदस की मोहब्बत के मुकाबले में माँ की मोहब्बत कुछ भी नहीं। पाक रूह की ये जो मोहब्बत है माँ की मोहब्बत से कुछ भी नहीं है। और बल्कि हमें अपनी ज़ात का ख्याल रखते हुए रूह कुदस को रिजीदा नहीं करना चाहिए। और रूह कुदस को रिजीदा करने के नताज बड़े अफसोसनाक हैं, ख़तरनाक हैं। जब खुदा के पाक रूह को हम रिजीदा कर जाते हैं तो हमें बड़े ख़तरात का सामना करना है। और वो ख़तरात कौन कौन से हैं? जब हम रूह कुदस को रिजीदा हो जाता है तो वो पूरी तरह अपना काम नहीं कर सकता जो काम वो हमसे करवाना चाहता है। यानी कि जब खुदा का पाक रूह हमसे रिजीदा हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी के अंदर वो काम जो खुदा यीशु करवाना चाहता है वो पूरे तरीके से नहीं होने पाता और इसमें रुकावट पैदा हो जाती है। कभी कभी नहीं खुदा साड़ी सुनता नहीं, खुदा हमारी दुआओं को सुनता नहीं। प्रॉब्लम है कि हमने अभी तक खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल नहीं किया, बल्कि उसको नाराज किया हुआ है। और जब खुदा का पाक रूह हमसे लड़ा होता है तो हमारे ऊपर बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलें, बुरी वबाएं, शैतान की दिक्कत, कुव्वतें, जादूगर की रुकावटें असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। हत्ता कि हमारी दुआएं रुक जाती हैं, रुकावट आ जाती है जब खुदा का पाक रूह हमसे क्या हो जाता है, रजीदा हो जाता है, लड़ा हो जाता है। और भी लिखा है कि तमाम किस्म की बरकत भी का इंसार भी रूह कुदस पर है। अगर आपके घर के अंदर बरकत नहीं तो समझ लीजिए खुदा का पाक रूह क्या है, हमसे रजीदा है। खुदा का पाक रूह हमसे लड़ा है। हमारे किचन के अंदर बरकत नहीं है, हमारे बच्चों पर बरकत नहीं है, हमारे घर के अंदर बीमारी है, परेशानी है, हमारे रुपये पैसे पर बरकत नहीं है, तो समझ लें कि हमारे घर के अंदर क्या है, खुदा का पाक रूह नहीं है। मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह नहीं है, वो हमसे नाराज़ है। और वो जब आप खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत दे देते हैं तो हमारे हर काम होना शुरू हो जाते हैं। हमारी दुआएं भी खुदा जो है वो सुनना शुरू हो जाता है, हमारे घर के अंदर बरकत भी आ जाती है। मैंने बताया था कि वो रूह कौन है, खुदा, खुदा खुद। और जिथे खुदा आ जाता है उत्थे चीज़ा घट दिया नहीं बल्कि बदलनी शुरू हो जाती। तो खुदा के पाक रूह को हमने रजीदा नहीं करना। फिर देखिए अगर रूह कुदस रजीदा हो जाए तो हमारी दुआएं उनके अंदर रुकावट पैदा होती है। खुदा का पाक रूह रजीदा हो जाता है तो हमारी दुआओं के अंदर की क्या आ जाती है, रुकावट आई। कई लोग कहते असं 3-3 4-4 घंटे दुआ करने हैं, पता नहीं खुदा साड़ी सुनता नहीं। ये सुने कैसे? खुदा का पाक रूह तो आपके साथ नहीं है, आपकी ज़िंदगी इस लायक ही नहीं है कि खुदा का पाक रूह आपके साथ चल सके। पहले अपनी ज़िंदगी को खुदावन को दे, खुदा का पाक रूह को मांगे, खुदावन का पाक रूह तू मेरे अंदर होके काम कर। जब खुदा का पाक रूह आपके साथ होगा, रजीदा नहीं होगा, नाराज़ नहीं होगा, तो आपकी दुआओं का भी जवाब खुदावन देगा। और अगर नाराज़ है तो समझ लें कि दुआ के अंदर सबसे बड़ी रुकावट यही है कि खुदा का पाक रूह हमसे क्या है, रजीदा है। फिर जी बाइबल मुकद्दस का मफीद तरीन तरीका ये है जब रूह कुदस की रहनुमाई में उसे अपना उस्ताद समझते हुए बाइबल का मुतालिया करें। अगर रूह कुदस रजीदा हो जाए तो हम बाइबल के मुतालिया को तमाम अफादियत से महरूम हो जाएंगे। सबसे बड़ा उस्ताद रूह कुदस को माने। जब भी आप कलाम की स्टडी करने लगे तो खुदा के पाक रूह को उस्ताद माने कि खुदा उनके पाक रूह हमारी मदद कर इस कलाम को समझने में, इस कलाम को पढ़ने में। फिर ही आपको फ़ायदा होगा, फिर ही आपको इस कलाम की समझ आएगी, वरना कि कलाम की समझ नहीं आएगी। क्योंकि पाक रूह हमारी हदायत करता है, हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, ताकि हम जो है इस कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो खुदा को पसंद आ सकें। फिर है जी, फिर हकीकी पूछी रूह कुदस का फल है। अब रूह कुदस का फल क्या चाहता है? जब आप अगर चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह हमारे साथ रहे तो वो
रूह कुदस के कुछ फल हैं, हम उनको अपनाएं, अपनी जिंदगी के अंदर लेके आए। मतलब मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम के अंदर फिलिपियों 5 बाब और उसकी 22 आयत, और इसको पढ़ने के अंदर मिसेस शकील जो है आएंगी और इस कलाम की तिलावत करेंगे। फिलिपियों 5 बाब उसकी 22 आयत कि हमें खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर अगर लेना चाहते हैं तो वो कुछ फल चाहता है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर है तो खुदा का पाक रूह हमारे साथ है। आमीन। खुदा की जिंदगी बस कलाम के पढ़े और सुनिए, मैं खुदा की बरकत ना करूं। लिखा है कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर मोहब्बत नहीं, खुशी नहीं, इत्मीनान नहीं, तहम्मुल नहीं, मेहरबानी नहीं, नेकी नहीं, ईमानदारी नहीं, हिलम नहीं, परहेजगारी नहीं, तो इसका मतलब है कि खुदा का पाक रूह हमसे लैदा है। और अगर ये सब चीजें हैं तो पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर मोहब्बत पैदा करता है, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाता है। खुदा का पाक रूह अगर हमारे साथ है तो हमें खुशी करना बताता है, हम खुशी से रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी बांट सकते हैं। फिर खुदा का पाक रूह हमें इत्मीनान से जीना सिखाता है, जिंदगी बसर करना सिखाता है, हमारे अंदर इत्मीनान पैदा करता है। फिर खुदा का पाक रूह तहम्मुल पैदा करता है, हमें नेकी की रूह अता करता है कि हम नेकी के साथ चलें। और फिर है ईमानदारी हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती है जब खुदा का पाक रूह हमारे साथ होता है। फिर इल्म आ जाता है, परहेजगारी आ जाती है। ऐसे कामों की शरीर मुखालिफ नहीं करती। खुदा का पाक रूह अगर हमारे साथ है तो हमारे अंदर मोहब्बत है, हमारे अंदर खुशी है, हमारे अंदर इत्मीनान है, हमारे अंदर तहम्मुल है, हमारे अंदर ईमानदारी है, हमारे अंदर नेकी है, हमारे अंदर हिल्म है, हमारे अंदर परहेजगारी है। और अगर खुदा का पाक रूह हमसे रजीदा है तो ना तो हमारी जिंदगी के अंदर मोहब्बत है, ना खुशी है, ना हलीमी है, ना परहेजगारी है, और ना ईमानदारी है, और ना नेकी है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर ये सब चीजें हो तो खुदा के पाक रूह को रजीदा मत करें, उसको नाराज ना करें। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हमें जो है अगर रूह कुदस को रजीदा हो जाए तो हमारी खुशी भी ख़त्म हो जाती है, हमारे अंदर ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। अगर खुदा का पाक रूह रजीदा हो जाए तो हमारे अंदर मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, खुशी ख़त्म हो जाती है, इत्मीनान ख़त्म हो जाता है, ईमानदारी ख़त्म हो जाती है, परहेजगारी ख़त्म हो जाती है, और नेकी और परहेजगारी ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये भी मुमकिन है कि हम अपनी निजात की खुशी को भी खो दें। निजात भी चली जाती है, वो भी ख़त्म हो जाती है जब खुदा का पाक रूह हमसे लहरा जाता है। और अगर हम रूह कुदस को रजीदा कर दें तो खिदमत की कुव्वत भी खो जाती है। अगर एक खादिम है, खुदा की खिदमत कर रहा है, लेकिन खुदा का पाक रूह उसके साथ नहीं है तो उसकी खिदमत भी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि खुदा का पाक रूह उसके साथ नहीं है। खुदा का पाक रूह सिखाता है, खुदा का पाक रूह हदायत करता है, रहनुमाई करता है अपने खादमों की, अपने लोगों की। तो अगर खुदा का पाक रूह नहीं है और अगर वो खादिम है तो समझ लें कि उसकी कुव्वत भी कम होना शुरू हो जाएगी। खुदा का पाक रूह जोर देता है, ताकत देता है। और फिर है कि हमारे लिए इस आयत से आगाही आना बहुत अहम है। हम खुदा के पाक रूह को किस तरह रजीदा करते हैं। याद रखें कि हर एक जान को पता होता है कि मैं इस वक्त कहाँ पे खड़ा हूँ, खुदा का पाक रूह मेरे साथ है या नहीं है। अगर खुदा का पाक रूह हमसे रजीदा है और हमने उसको नाराज़ किया हुआ है तो उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, क्योंकि हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हम खुदा उनसे दूर रह के कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा के कलाम के अंदर लिखा, अगर तुम उसके करीब जाओगे तो वो तुम्हारे करीब आएगा। अगर हम खुदा के करीब जाएंगे, खुदा के पाक रूह के वो अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत देंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा। वो तो कहता रहता है
देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या करता हूँ, खटखटाता हूँ। जो कोई भी मेरी आवाज़ सुनकर अपने दिल का दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा, बातें करूंगा। इसका मतलब खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर आना चाहता है। वो तो आपके दिल के दस्तखत दे रहा है। आपने खुदावन यीशु को कबूल करना है और खुदावन यीशु को दावत देनी है। खुदावन मैं तुझे नाराज़ करने वाला ना बन सकूँ, इसलिए हर एक गलत काम को, गलत इरादे और गलत बात और खुदा के पाक रूह को रजीदा करती है। गलत काम जो हमारे होते हैं, गलतियाँ जो हम करते हैं, बुरे काम जो करते हैं, खुदा के पाक रूह को हम क्या करते हैं, रजीदा करते हैं। खुदा को जो काम पसंद नहीं, अगर वो हम खुद करते हैं, जो हम उसको करते हैं, इसका मतलब खुदा के पाक रूह को रजीदा करते हैं। बुरे कामों से खुदा उनको हम रजीदा करते हैं, बुरे ख्यालात से हम खुदा के पाक रूह को रजीदा करते हैं। तो याद रखें कि हमने खुदा के पाक रूह को रजीदा नहीं करना। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, क्या आप अपनी गलती कामों से खुदा के पाक रूह को रजीदा करते हैं? अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है तो खुदा का पाक रूह रजीदा है, लेकिन खुदावन उससे खुश नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह है तो इसका मतलब खुदा का पाक रूह आपसे रजीदा है और खुदा आपसे खुश नहीं है। आइए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और गुनाह से नफरत करें, ताकि खुदावन जो है, खुदावन का रूह जो है हमसे रजीदा ना हो। मेरे लिए आपके लिए, मेरे लिए आज मौका है कि हम अपने बुरे कामों को छोड़ें, बुरी आदतों को छोड़ें, बुरे ख्यालात को छोड़ें, बुरी सोचों को छोड़ें और खुदा यीशु को अपना लें। खुदा के पाक रूह को रजीदा ना करें, ताकि हमारी बरकत छीन ना जाए, हमारे अंदर जो खुशी आ सके, हमारे अंदर मोहब्बत पैदा हो सके, हमारी ज़िंदगी ईमानदारी वाली बन जाए, हमारी ज़िंदगी परहेज़गारी वाली बन जाए। मेरे अज़ीज़ों, आजमाइशें जितनी मर्जी आएँ, परेशानियाँ जितनी मर्जी आएँ, हमने खुदा के पाक रूह को रजीदा नहीं करना, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है और हमें कुव्वत बख्शता है और हमें निजात देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें खलासी देता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आइए अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हमने खुदा के पाक रूह को रजीदा नहीं करना। खुदा का पाक रूह जब तक हमारे साथ है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। खुदा का पाक रूह अगर हमारे साथ है, आजमाइशों के अंदर भी खुदा जो है आप लोगों के साथ है, परेशानियों के अंदर भी आपके साथ है, मुश्किलों के अंदर भी खुदा हमारे साथ है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पाक रूह को मैंने और आपने रजीदा नहीं करना, उसको नाराज़ नहीं करना। खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत दें कि खुदा के पाक रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर आ, हमारी ज़िंदगी के अंदर काम कर, मेरे बदन को बदल दे, मेरे ज़हन को बदल दे, मेरे दिल को बदल दे, मेरे ख्यालों को बदल दे, मेरे सोचों को बदल दे, ताकि खुदावन मैं तेरी तरफ माइल हो सकूँ, मैं तुझे रजीदा ना कर सकूँ। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम जो पढ़ा गया, मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम कभी बेतसीर होकर नहीं लौटता, वो दिलों पर चोट करता है। आज भी खुदा का कलाम बेतसीर होकर नहीं लौटेगा, बल्कि ये फल पैदा करेगा हमारी ज़िंदगी के अंदर। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना का 100 गुना फल पैदा करेगा। खुदा उनके इस ज़िंदगी में इस कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत नाज़िल हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आज वादा करें कि खुदावन, मैं तेरे पाक को रजीदा नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। मैं तेरी बेटी बनना चाहती हूँ, मैं तेरा फर्जंद बनना चाहता हूँ, मैं तेरी खुदावन यीशु नाज़ी दुल्हन बनना चाहती हूँ। मैं खुदावन तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बन सकूँ। मेरे ख्यालों को बदल, मेरी सोचों को बदल, ताकि खुदावन तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बन सकूँ। ऐ रहीम करीम खुदा कादर, तू जो अब्दुल कबाब और सलामती का शहज़ादा है, खुदावन यीशु नाज़ी, तू जो हमारी ज़िंदगियों का खालिक और मालिक है, और तू इब्तिदा है, तू ही इंतहा है, तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है। और खुदावन यीशु, आज इस कलाम के वसीला से जो तूने खुदावन हमारी ज़िंदगी के अंदर रखा है, तेरा कलाम इनकी ज़िंदगी के अंदर खुदावन फल पैदा करे और तुझे कभी भी रजीदा न कर सके। खुदावन तेरे पास रूह को रजीदा नहीं कर सके, बल्कि खुदावन आजमाइशें आए, मुश्किलें आए, बीमारियां आए, खुदावन हम तेरे पाक रूह की हदायत के मुताबिक चलते हुए इन तमाम बीमारियों पर, परेशानियों पर गलबा हासिल कर सके। और खुदावन यीशु नाज़ी, आज इतनी जानन तेरे कलाम को सुना है, खुदावन ये सब बरकत हासिल करे और खुदावन तेरी पाक की हदायत के मुताबिक चल सके और खुदावन तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। सचमुच खुदावन तुझसे दूर रह के आप कुछ भी नहीं कर सकते।
ये कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर लिखा जाए, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, तब भी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा जब तक तेरा कलाम, तेरे हकाम, तेरे कवानीन हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं, तेरा पाक तू हमारे साथ है, खुदा ये सनासी हम दिन और रात 24 तरक्की करेंगे। खुदा तेरा पाक तू हमें निडार बनाता है, वो कहता खौफ ना खा, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। खुदा ये सनासी हमें अपनी कलाम के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जितनी जाने तेरे कलाम को सुना और जितनी जानों ने खुदा आज इस कलाम के वसीले से बरकत पाई है, ये बरकत इनके घरानों के अंदर ट्रांसफर हो जाए, इनके बच्चों की ज़िंदगी के अंदर ट्रांसफर हो जाए, इनके घराने के अंदर ट्रांसफर हो जाए, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। खुदा जिनकी दरख्वास्त से तेरे मतलब में आ चुकी है, घरों के अंदर है, हॉस्पिटल के अंदर है, तेरे यीशु के नाम से शिफा पाए। खुदा तमाम शुगर, तमाम ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी ना हाई ना लो, यीशु के नाम से यकसा हो जाए। और खुदा तमाम कानों की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, सर की बीमारियां, दिल की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, जिगर की बीमारियां और तमाम बॉडी के तमाम जरासीम, जादूगर की रुकावटें, बुरी तस्वीरों के असरात, अबलीसी कूदते और तमाम अबलीस के हाथ करने चलाक की मकारियों पर हम तेरा लहू और तेरे पाक की आग उड़ेलते हैं। यीशु के नाम से हर एक जान को आजाद कर, यीशु के नाम से हर एक शिफा पा दे। वो किसी बीमारी के अंदर के अंदर है, कोरोना वबा के अंदर है और खुदावंद तमाम मौसमी असरात की बीमारियां हैं, तेरे यीशु के नाम से जलकर राख हो जाए। आज कोई इंसान खाली हाथ ना जाए, बल्कि तेरी बरकतें तेरी रहमतें समेत आ जाए। खुदा ये साथी सारा दिन स्वाद से बानी की है, आज रात भी स्वाद से बानी करना और जितने जाने खुदावन नाजरीन खुदा ने इस्लाम तेरे कलाम को सुना है, वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ और तेरा नाम जलाल पाए। मैं खुदा सबको तेरे ताबा करता हूँ और खुदा आज की सारी इस बरकत के लिए हम तेरा और तेरी दीवी नेमतों का दिल की गहराई से शुक्रगुजार है। ईमान से मांगा है, ईमान से हासिल किया, खुदा यीशु मसीह के नाम से। आइए अपने हाथ बनाएं खुदा की वो इस दुआ जो उसने अपने शागिर्दों को सिखाई और उसने कहा जब भी तुम दुआ किया करो तो कहा करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को आज बजे और जिस अपने कदर को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि भलाई से अच्छा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का जलाली बाबरकत शिफा तंदुरुस्ती और बहाली वाला हाल तमाम रूए कलीसिया के लोगों पर और जितने नाजरीन और जितने कलीसिया तेरे बेटे बेटियां खुदा तेरी दूरी के अंदर झुके हैं, उनके बच्चों पर, उनके घरानों पर खुदा तेरा फजल वाला रहमत वाला हाल अब से लेकर मसीह के अंत तक हमेशा कायम और दायम है। खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा आपके साथ हो, खुदा आपके जिस्मानी और रूहानी प्रकार से माला माल करे, बाप और बेटे और उस कुदरत के नाम से। आमीन।